Okay. So let's start to revise amino acids. So tell me positive charge amino acid, that is, what is that positive charge amino acid? R. All. That is histidine, arginine and lysine. Negative charge? Ga. Ga. That is glutamic acid as well as aspartic acid. Okay. Non-polar. Non-polar. IMP Yes, IMP, PT wal, they are called non-polar. Or polar? ST guard. Yes, it is ST guard. Which amino acid is simplest amino acid? Glycine. Yes, that is glycine. And which one is complex? Which contain amino group? Proline. Yes, that is proline. Which amino acids contain hydroxyl group? OH. OH मतलब that person require Serious treatment. no need. Serious treatment. If that person requires serious treatment, because that is serine and threonine. After then, which amino acid that contains sulfur in its group? Methionine and cysteine. Methionine and cysteine. Very good. Amide group? Glutamine and asparagine. Very good. Glutamine and asparagine. और कुछ छूट रहा है? Aromatic. 3 aromatic. Tryptophan, phenylalanine, tyrosine. Yes, very good. Tryptophan, tyrosine, and adenine. They are aromatic amino acids. Okay, so it was the basic structure about amino acids. हम फिर से आएंगे कैसे वो लोग बॉन्ड बनाएंगे और कैसे वो लोग प्रोटीन बनाएंगे, वो फिर से हम आएंगे. अभी हम जाएंगे that is on lipid. Okay, so lipid, it is of 3 types that I will write on the board. What are the types of lipids? So these are the types of lipids. Is it visible? Yes. Okay. So there are 3 types of lipids. That is simple. Second one is that is compound. And third one is it is derived lipid. Okay. So there are basically 3 types of lipids. Simple, compound and third one is that is derived. तो अब हम देखेंगे कि सिंपल किसको बोलेंगे और compound किसको बोलेंगे, derived किसको बोलेंगे. So let's talk about simple lipid. It is composed of fatty acid plus glycerol. 3 molecule of fatty acid and glycerol. Okay. और या फिर आप बोल सकते हो तो fatty acid plus alcohol, लेकिन alcohol में that is glycerol. Okay. अब ये जो fatty acid है वो कैसा है? तो it contain hydrocarbon chain. A hydrocarbon chain, that fatty acid contain hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain का मतलब होता है it's like that way. CH2 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 like that way. और end जो होता है that is by COOH, that is carboxylic acid. तो ये end ऐसे होता है. और उसका एग्जांपल आपको दूं तो that is palmitic acid. Palmitic acid जिसके अंदर 16 कार्बन होंगे. 16 मतलब कैसे? इट्स लाइक फर्स्ट वाला CH3 आएगा, देन CH2, वो आपके आए 15, सॉरी 14 और लास्ट में दैट COOH. तो टोटल 16, 14, 15 एंड 15 कार्बन, तो टोटल दैट इज 16. या फिर दूसरा जो है उसको बोलेंगे एरिडोनिक एसिड. ए उसके अंदर इट कंटेन्स 20 कार्बन. तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड. फैटी एसिड, तो फैटी एसिड कैसा आएगा? CH3 CH2 CH2 एंड एंडिंग विद COOH. तो ये जो कार्बन है उस नंबर से हम नाम देंगे
16 कार्बन है तो वी कॉल इट पाल्मिटिक एसिड एग्जांपल, 20 कार्बन है तो वी कॉल इट एरिकडोनिक एसिड. So that is about simple lipid. Simple lipid is composed of fatty acid plus glycerol. और fatty acid क्या है? चेन है हाइड्रोकार्बन की, CH2 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 ending with COOH. For example, 2 palmitic acid as well as arachidonic acid. So it is about simple lipid. Now next one is उसके अंदर दो चीज आएगी, that is saturated fatty acid as well as unsaturated fatty acid. अब देखो सैचुरेट किसको बोलेंगे, अनसैचुरेट किसको बोलेंगे. सैचुरेट का मतलब है ये वाला, देखो हर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे वी कॉल इट सैचुरेट. अनसैचुरेट कि आपको ये डबल बॉन्ड दिखेगा कहीं ना कहीं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. तो सैचुरेट मतलब दे हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और अनसैचुरेट मतलब दे हैव वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड. तो ये पाल्मिटिक एसिड जो है इट इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड अमीनो एसिड, और ये जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड अमीनो एसिड. और एक भी दूसरा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड स्टीयरिक एसिड. स्टीयरिक एसिड उसका, और इसका एग्जांपल है दैट इज ऑलिक एसिड, दैट इज अनसैचुरेटेड. अगेन आई रिपीट व्हाट इज सैचुरेट, व्हाट इज अनसैचुरेट. सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि सैचुरेट मतलब दे हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ये जो पूरी चेन है हाइड्रोकार्बन की, वो जो चेन है उसके अंदर कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. आपको पता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? Yes, ma'am. Yes, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में देयर इज नो डबल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में है, मतलब यू कैन ब्रेक दैट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये है. तो दीस आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड. और यहाँ पे दैट इज, अब ये स्टीयरिक एसिड जो है 18 कार्बन, और यहाँ पे एरिकडोनिक एसिड एज वेल एज ऑलिक एसिड. ऑलिक एसिड भी अगेन 18 कार्बन, ऑलिक एसिड भी 18 कार्बन ही है, बट कैसा है वो अनसैचुरेटेड है. इज इट क्लियर? सो आई कैन मूव फर्दर कंपाउंड फैटी एसिड. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो कौन बताएगा. सिंपल लिपिड इट इज कंपोज्ड ऑफ Fatty acid. ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा. उसका स्ट्रक्चर बाद में हम देखेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. ये स्ट्रक्चर आपका ग्लिसरॉल का है, ठीक है. और 3 फैटी एसिड आएंगे, यहाँ पे 3 फैटी एसिड, कोई भी यहाँ से. तो अब ये फैटी एसिड क्या है, इट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन. हाइड्रोकार्बन चेन मतलब CH2 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 CH2, पहले वाला C3 आएगा बैलेंस करने के लिए, और फिर इसको दो चीज में डिवाइड किया. कौन सी दो चीज में डिवाइड किया, कौन सी दो चीज में डिवाइड किया हमने फैटी एसिड को? सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड. Unsaturated. यस, सैचुरेट किसको बोलेंगे? जिसके Having पास single bond. having one single bond. Only single one. यस, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड. और अनसैचुरेटेड Double bonds and triple. Having double or triple bond. yes, and this is the structure of glycerol. This is the structure of glycerol. अगर लिखना है तो लिख देना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज अनदर वर्ड, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. देखो मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन, ट्राई हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो ट्राई हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. So trihydroxy propane, 3 carbons. That's fine. So this is structure of that is glycerol. Okay. Shall I rub this? Yes, ma'am. Okay. ma'am. Screenshot पाई लो. जो तुमने क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. પાલ્મિટિક એસિડમાં કાર્બન કેટલા, સ્ટીયરિક એસિડમાં કાર્બન કેટલા, સેચ્યુરેટનું એક્ઝામ્પલ કયું, અનસેચ્યુરેટનું એક્ઝામ્પલ કયું. તો આ બધું that may ask in your exam. You need to remember what are the example of saturated fatty acid.
palmitate palmitic acid, and stearic acid. Stearic acid. स्टेरिक एसिड। ओके, अब ये जो है वो कैसे मतलब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है प्लस सिर्फ एक ही फैटी एसिड है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। और ये दो जो बॉन्ड बनाते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। We call it ester bond. That bond between glycerol and fatty acid. Now one glycerol plus two fatty acid, it will form diglyceride. दो है इसीलिए, ठीक है, diglyceride. Now third one glycerol plus three fatty acid. What we call? Triglyceride. Yes, it is called triglyceride. Okay, yes or no? And how they link? मैं आपको अभी ये रब करूं? Shall I rub this? Yes. Okay. Now see how they link. कैसे वो बॉन्ड बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ग्लिसरॉल, उसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था, लाइक CH2OH, like that way. CH2OH, CH2OH, CH2OH. अब मान लो कि मैं यहाँ पे 3 फैटी एसिड लिख रही हूँ, 3 फैटी एसिड, तो ये मेरा एक मतलब दिस इज योर COOH, दैट इज R1 फैटी एसिड, उसके लिए मैंने R1 डाला, लास्ट COOH था ना, ये क्लियर है? Yes. Okay. तो ऐसे 3 लेती हूँ मैं, ट्राइग्लिसराइड, सेकेंड फैटी एसिड, कौन सा है वो बताया नहीं है, दिस इज योर थर्ड फैटी एसिड। ये एक ही मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, ये 3 अलग अलग है, ये पूरी चेन कार्बोहाइड्रेट चेन पूरी, और एन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाउ दे लिंक, तो देखो ये जो है H2O, they remove 3 molecules of water and they form CH2R1, COOR2, CH2, COO भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझने के लिए लिखा है, ये CO और यहाँ का O, that is R3, और ये जो बॉन्ड है it is called ester bond. I hope it's clear now. Yes, ma'am. sir. Yes, दिख रहा। तीसरा सेकंड में CH है सर, फिर CH2 सर। है वहाँ CH है दिख रहा, बैलेंस ही जो नहीं, चारों में जुड़े हैं 1 2 3 और 4, कार्बन बैलेंस से क्या आना दिख रहा, थर्ड टीचर અને બેલેન્સ से जो नहीं 1 अब 2 हाइड्रोजन एका અને એકા એટલે 4 અને આની અંદર જો 1 2 3 ને હાઇડ્રોજન 4 એટલે ખાલી CH જ આવે દીકરા। ओके, Yes, આ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરજો, and that bond is ester bond. Shall I move further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now second one is, that is compound lipid. If I talk about compound lipid, simple lipid खबर पड़ी, what is simple lipid? Simple lipid is composed of Fatty acid and glycerol. fatty acid and glycerol. डिसाइड करेगा कि कितना है, 1 है 2 है 3 है। So next one is, that is compound lipid. Second जो था that is compound lipid. तो ये जो है ठीक है, वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल तो है ही हमारा सिंपल के जैसा, लेकिन फिर उसके साथ कोई एडिशनल ग्रुप है, it contains such additional group, so that is called compound lipid. Okay, example phospholipid, कुछ याद है phospholipid कहाँ पे था, that is in, किसको याद है कहाँ पे था? सेल मेम्ब्रेन। Yes, very good.
That is Yes, sir, ma'am. cell membrane. So it contains fatty acid plus glycerol plus phosphate. अगर ये phosphate additional आया तो it is called phospholipid. मतलब lipid के अंदर कुछ extra है. Okay, and this type of structure is found in cell membrane. Cell membrane के अंदर वो पाया जाता है. Found in cell membrane. Okay, और दूसरा example है that is called lecithin. दूसरा example lecithin. It is also present in cell membrane. आपको उसका स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है. But remember the name lecithin. Is it clear about compound lipid? What is compound lipid? It is fatty Milk acid, which has glycerol plus Glycerol and additional. additional group. glycerol plus additional. Yes, yes. For example, phospholipid as well as lecithin. They are the example of compound lipid. Now come to the third type. What was the third type? Derived lipid. Derived. Derived lipid. Okay, Derived that third one is that is derived lipid. अब आपको क्या करना है? आपको एक चार्ट ड्रॉ करना है और चार्ट मतलब पेज आपका वो उल्टा कर देना, चार्ट बनाना, एवरीथिंग इट इज इन चार्ट कि मतलब सिंपल कंपाउंड एंड डिराइव्ड, तो वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. सिंपल में थोड़ा लिखना ज्यादा है बट शॉर्ट आप अपने वर्ड थोड़े शॉर्ट कर देना. सो दैट इज अबाउट डिराइव्ड लिपिड. तो व्हाट इज डिराइव्ड लिपिड? ओके, सो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड. कि सिंपल लिपिड की ही प्रोडक्ट है. तो सिंपल लिपिड प्लस कंपाउंड लिपिड दैट इज कॉल्ड कोलेस्टेरॉल. तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपल लिपिड, ओके, प्लस कंपाउंड लिपिड. अभी हमने जो कंपाउंड लिपिड डाला कि देयर इज सच एडिशनल ग्रुप, तो एडिशनल ग्रुप भी है और ये हाइड्रोलिसिस हुआ है, टूट चुका है, दैट सिंपल लिपिड. तो वो और कंपाउंड लिपिड दोनों मिला के दे विल फॉर्म अ डिराइव्ड लिपिड. एग्जांपल दैट इज कोलेस्टेरॉल, or you can say that is yolk of the egg. Egg નું જે હોય ને yolk, yellow color. Yes, ma'am. Okay, so it is the example of that derived lipid. Derived lipid કોને કહેવાય? કોણ કહેશે મને? What is derived lipid? Product of simple Product lipid of plus simple compound lipid. lipid. Product of simple lipid plus compound lipid. Okay, okay. And what are the examples of that derived lipid? Cholesterol. Cholesterol and egg yolk. Egg yolk. Okay, fine. So these are the about lipid. Okay. चलो अब रिवाइज करते हैं. आज नया नहीं स्टार्ट करना है. कल मैं स्टार्ट करूंगी कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो आज हम नया नहीं स्टार्ट करते हैं या फिर कर दूं कार्बोहाइड्रेट? व्हाट यू से? कल ही करवाती हूँ या फिर आज करवाऊं? What will you say? Reply बेटा फटाफट. करवा दूं कार्बोहाइड्रेट? ये सब जो है दैट इज जस्ट सुपरफिशियल ओवरव्यू और आएगा डिटेल में. चलो तो कार्बोहाइड्रेट करवा देते हैं आज. What is carbohydrate? So carbohydrate, it is sweet water soluble carbohydrate or carbohydrate. It means ratio of carbohydrate is carbon, hydrogen, oxygen in the ratio of 1:2:1. और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दैट इज ग्लूकोज एज वेल एज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीएनए के अंदर जो आता है डीऑक्सीराइबोज, सो दैट इज शुगर राइबोज. तो कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट वन इज लिपिड की बात. कार्बोहाइड्रेट नाम ही आपको बताता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो इट इज स्वीट. सेकंड पॉइंट इज इट इज वाटर soluble carbohydrate, water soluble carbohydrate. Okay, and what is the ratio of CH and O? The ratio of CHO is 1:2:1. ऐसा होता है, ठीक है. और एग्जाम्पल आर ग्लूकोज एज वेल एज राइबोज. अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो वो स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का है.
इट्स लाइक दैट वे, या फिर लेट मी ड्रॉ. इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर. अब ये जो है वो बीच में कार्बन आएगा. कार्बन यहाँ पे हम लिखते नहीं है. एक ग्रुप यहाँ पे OH, दूसरा H आता है, तो H यहाँ पे लिखा नहीं है. तो ये स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. तो इट्स लाइक दैट वे. ओके, यार स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, ये बाद में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड राइबोज. लेट मी शेयर द स्क्रीन सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट. See, here is the structure of carbohydrate. दिखा आपको? Are you able to see the structure? Yes. Yes. Yes, ma'am. This is the structure of glucose and this is the structure of ribose. See how you can write. ये हम बाद में देखेंगे कि लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ कैसे हम उसको राउंड फॉर्म में करेंगे, वो हम बाद में करेंगे. अभी जब सीधा याद रखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सी C6H12O6 रेशियो देखो, H ज्यादा है. और राइबोज C5H10O5, मतलब 1:2:1, दैट इज रेशियो. सो इट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट. इज इट क्लियर? Yes. Okay, take a screenshot. Yes, ma'am. Take a screenshot. Take a screenshot. और अगर हो जाए तो मुझे बताना. डन? मैम ये ड्रॉ कर ही लेना है. हाँ, ड्रॉ कर ले. Yes, ma'am. Done. बाद में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे लीनियर से वैसे गए. ये तो अभी सुपरफिशियल है, तो बाद में आएगा, अभी स्ट्रक्चर आएगा. Okay, ma'am. ओके ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am.